हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 एंड द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, continuity and differentiability of the function will come in around 5 to 7 marks in this current year and in 2021. So this topic is going to be very important, and believe me, this topic is very easy as well. So most of the students find it very difficult. I don't know why it is. Maybe because of some उन्होंने पढ़ा नहीं होता या फिर पढ़ाया नहीं होता अच्छे से. So one of the reason may be like this. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ट्राई टू डिस्कस द टॉपिक. सो इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द continuity of the function. So continuity of the function is a very important topic from class 12th examination point of view. तो हमने एक और क्लास में ये डिस्कस कर भी चुके हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट बाय लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. सो अगर ग्राफ से हम कैसे पता कर सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, ये हम देखेंगे अभी. तो इसमें हम हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, तो इसके लिए हमें क्या है कि इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. ठीक है, सो इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द function in one stroke, like without lifting the pen from the plane of the paper, then we can say the function is continuous at a fixed point. ठीक है, so if we can draw the graph in one stroke without lifting pen from the plane of the paper, then we can say the function is continuous. ठीक है, और उसमें there is a one more definition of continuous function. तो अगर देखो दो तरीके हैं, there are two methods by which we can identify if the given function is continuous or not. ठीक है, so if we are given a graph of the function, तो graph of the function में if the function is the graph of the function is drawn without lifting the pen from plane of the paper. एक condition है, if the graph is drawn without lifting the pen from plane of the paper, then we can say the graph is continuous, the function is continuous in the given interval. There is one more method to find out if the function is continuous. ठीक है, that is algebraic or mathematical way of finding it. ठीक है, तो उसके लिए three conditions हैं. So there are three conditions of continuity of a function function fx at point x is equal to a. तो फर्स्ट क्या है, the function has to be defined at the given point. कोई भी given point है उस पर वो डिफाइन होना चाहिए. ठीक है, एंड लाइक दिस, जैसे इसमें हम गिवन भी है, so function has to be defined at any given point x is equal to a. The second is limit of the function should exist. अब देखो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, जैसे मान लो मैं x इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, द वैल्यू जस्ट लेस देन 1, और जस्ट लेस देन की 1 की बात क्या है, 0.999. तो हम बहुत छोटी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली बात करेंगे. सो लेस देन 1 का मतलब ये नहीं है कि 0 की बात करेंगे, -1 की बात करेंगे. सो लेस देन 1 का मतलब है द वैल्यू जस्ट लेस देन 1. ठीक है, 0.999. एंड सिमिलरली जस्ट राइट हैंड लिमिट क्या है, वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 1, तो 1.001. ठीक है, सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, द फंक्शन शुड एग्जिस्ट एट द गिवन पॉइंट, और लिमिट्स ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट. ठीक है, इसको अगर डेफिनेशन में लिखें या फिर स्टेटमेंट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c exist and equal to each other, then f is said to be continuous at x equal to c. और दूसरा, a function is continuous at x equal to c if the function is defined at x is equal to c and the value of the function is equal to the limit of the function. तो ये कुछ conditions हैं, कुछ three conditions हैं, and all the three conditions need to be satisfied for a function to be continuous. ये three conditions we will check mathematically या फिर algebraically हम चेक करेंगे. ठीक है, और दूसरा हम ग्राफ अगर बना सकते हैं या ग्राफ हमें गिवन है, तो if the graph is drawn without lifting the pen from plane of the paper, तो हम बता सकते हैं कि वो continuous है. ठीक है, and my name is Gaurav Tyagi, and today we are starting with one of the important chapter of class 12, continuity and differentiability. Okay, and in this video we will discuss continuity of the functions. So we already have discussed around 8 question in the video, and we'll start from the question 9th. ठीक है, तो हम directly question 9 से start करेंगे. And before we move on, we'll see there is a algebra of continuous function. Like there are two more theorems that we have to be aware of. जैसे क्या है कि if there are two functions और उनका वो दोनों continuous भी हैं, if the two functions are given to us or both of them are continuous, then if we add both of them, f plus g, suppose एक function f और एक g है, तो f plus g will be continuous at the given point. और similarly अगर f minus g है, यानी अगर हम दो functions continuous हमें given है, दोनों ही continuous हैं, दोनों का अगर डिफरेंस करें, दोनों को ऐड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें या फिर दोनों को डिवाइड करें, द ओनली कंडीशन इन डिवीजन इन, तो
जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 इज इन्फिनाइट और एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनाइट विच इज नॉट डिफाइंड। तो एक थ्योरम तो ये है। दूसरी है कि अगर f एंड g बोथ आर रियल वैल्यूड फंक्शन, दोनों ही कंटिन्यूस है पॉइंट c पे, तो f ऑफ g यानी कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ जी, सो कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी, तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखने की हैं एंड दिस थिंग्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब चीज़ें हमें बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है, इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन टॉपिक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन अप टू 8, तो फिर एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना लिया, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द फंक्शन इज गिविंग टू अस, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमने ड्रॉ किया हुआ है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिविंग टू अस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू सॉल्व इट एल्जेब्रिकली। अब देखो इसमें क्या है, वी हैव टू फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं, जहाँ पर फंक्शन जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस ना होने के 3 रीजन हो सकते हैं। लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट ना कर रही हो सकता है फंक्शन डिफाइंड ना हो सकता है लिमिट इक्वल ना हो, ठीक है। सो देयर कैन बी एनी रीजन फॉर फंक्शन टू बी डिसकंटिन्यूस एट ए पॉइंट। तो हम देखते हैं क्या है। अब देखो फंक्शन जो हमें गिवन है एक्स अपॉन मोड एक्स, तो एक्स अपॉन मोड एक्स में या तो जो मोड एक्स है वो प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स होगा या नेगेटिव एक्स होगा। तो इन एनी केस इट इज आइदर इट विल बी 1 और -1। तो हमें जो फंक्शन गिवन है, जो डिफाइंड है, वो हमें कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। और कांस्टेंट तो हर एक जगह पर कंटिन्यूस होगा ही, लेकिन एक पॉइंट दे रखा है 0, ठीक है। तो 0 पे द वैल्यू इज डिफरेंट, ठीक है। तो चेक करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व द मोड। तो अब इसमें देखो हमारा जो एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन मोड एक्स है, तो एक्स अपॉन मोड एक्स जो है, तो हमारा मोड एक्स का मतलब क्या है कि मोड एक्स में आप नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव वैल्यू रखो, हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप लेस देन 0 रखोगे, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो जब नेगेटिव वैल्यूज रखोगे तो ये -1 रखोगे तो ये -1 आना चाहिए, लेकिन मोड कहता है कि नहीं जी -1 नहीं आ सकता, +1 ही आना है। तो जब -1 आ ही नहीं सकता तो हम क्या करेंगे इसमें, तो सिंपली पुट द माइनस साइन बिफोर इट टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। तो वो फिर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें माइनस साइन हम पहले लगा देंगे तो माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव। अब सपोज देखो हमने इसमें क्या किया, -1 अगर माइनस लगा दिया पहले, अब इसमें आप -1 रखते हो तो इट विल बी +1, ठीक है। सो लाइक दैट विल पुट द माइनस साइन बिफोर इट। तो हमारा जो फंक्शन है उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स अपॉन -x होगा, ठीक है, फॉर x इज लेस देन 0 एंड इट विल बी -1 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन, और x बाई x कट जाएगा। इसको देखो दोबारा से लिख लेते हैं अच्छे से। इसमें हम क्या करते हैं, किसी और पेन से इसको कट करते हैं, तो इट विल बी विजिबल टू अस क्लियरली, ठीक है। अब इसको हमने काट के -1 लिख लिया, x बाई x कट गया एंड हियर वी हैव। अब क्या करना है इसमें, देखो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू चेक द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, द फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, द फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट। तो देखो इसमें हमारा एफ एक्स क्या होगा, फॉर एक्स इजिकल टू 0 पर हमारा एफ एक्स कौन सा डिफाइंड है, एफ एक्स इजिकल टू -1 एट एक्स इजिकल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, f0 की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो कांस्टेंट है तो इसमें कुछ भी रखोगे तो कुछ चेंज होना नहीं है, तो f0 विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या करेंगे, इसमें 0 से छोटी वाली वैल्यू रखेंगे, सो लेस देन 0, और 0 से छोटी वाली वैल्यू के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और इसमें एफ एक्स क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। सो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ भी आप पुट करते हैं तो इट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू, तो -1 ही आएगा। सिंपली विल पुट द वैल्यू फॉर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू पर देखेंगे, तो 0 प्लस, हाँ जस्ट बड़ी वैल्यू पर चेक करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अब इसमें ग्रेटर देन 0 पे क्या रखते हैं, ग्रेटर देन 0 पे देखो, ग्रेटर देन 0 के लिए भी -1 डिफाइंड है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इन दिस वे वी कैन सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 बोथ आर सेम,
ठीक है, दोनों ही चीज़ सेम आ रही है। सो वी कैन सिंपली राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू f0, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, और पॉइंट क्या है 0 है, ठीक है। हेंस वी कैन से हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूस कहीं पे हो ही नहीं रहा है। अब देखो डिसकंटिन्यूस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूस है ही नहीं। सारे पॉइंट 0 पे हमने चेक किया, 0 पे कंटिन्यूस आ रहा है, एंड बाकी जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कहीं पर हो डिसकंटिन्यूस होगा ही नहीं। बात समझ में आई? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द गिवन फंक्शन। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट एंड ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। एंड हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन। सो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो अब देखो सारे पॉइंट हमें निकालने हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें निकालने हैं, ठीक है। और इसमें कुछ मोड वगैरह है नहीं, सो सिंपल जैसे हमें फंक्शन गिवन है उसी पे हमें आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस विल डिस्कस। तो पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? पहली कंडीशन है कि हमें इसमें वेरी फर्स्ट कंडीशन इज कि हमें इसमें बताना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है 1 पे या नहीं है। क्योंकि देखो ये x+1 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है ना, तो लीनियर पोलिनोमियल है, और x² + 1 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल्स हमने डिस्कस किया कि पोलिनोमियल्स कंटिन्यूस जनरली होते हैं, एक्सेप्ट जो भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है या पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इस पे x > 1 और <1 के लिए अलग अलग फंक्शन है, तो विल चेक दैट एंड सी इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, इफ fx इज कंटिन्यूस। तो फॉर x = 1, सो इसमें देखते हैं जैसे एट x = 1, तो हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइंड है x = 1 पे? हमारा fx x+1 इज डिफाइंड, ठीक है। सो विल सिंपली पुट द वैल्यू f1 इज इक्वल टू, so that will be 1 + 1 and it will be 2, so fx at x = 1 is 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विल सिंपली सी द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। और वैल्यू जस्ट लेस देन 1 के लिए क्या हमारा डिफाइंड है, हमारा देखो ये x लेस देन 1 के लिए हमारा x² + 1 डिफाइंड है, ठीक है। तो हम इसी को रखेंगे इसमें। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वैल्यू जस्ट लेस देन 1 रखेंगे, और इसमें fx हमारा क्या है, x² + 1, ठीक है। अब इसको वैल्यू रख देते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1² कितना होगा, 1 ही होगा, 1 + 1 is 2, ठीक है। सिंपली पुट द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो 1 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे। और हमने डिस्कस कर भी लिया है कि 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव का मतलब क्या है। इफ वी ट्राई टू पुट द वैल्यू लेस देन 1, तो उसमें 0.999 रखेंगे, और ग्रेटर देन 1 में 1.001 रखेंगे, तो विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू 1, तो इसलिए 1 ही हम पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है। और देखो भाई इसमें वो ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, x+1 डिफाइंड है, तो इसमें x+1 रख देते हैं, एंड 1 + 1 will be 2, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो विल सिंपली राइट लिमिट x टेंड्स टू 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1, ठीक है। तो हमारी जो 1 पे वैल्यू है फंक्शन की, लिमिट है, वो दोनों इक्वल है, ठीक है। लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x = a is equal, hence we can say there is no point of discontinuity. So similar to the last question, we can say there is no point of discontinuity. There is no point of discontinuity of the function. We can simply write this, ठीक है। तो इसमें हमने there is no point of discontinuity निकाल लिया, कोई पॉइंट है ही नहीं डिसकंटिन्यूटी का, सारे पॉइंट हमारे कंटिन्यूस हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर काइंड। तो इसमें क्या निकालना है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी भी हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, देखो कैसे। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, तो वो एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें
क्या है वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी। तो चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि देखो इसमें भी क्या है x क्यूब माइनस 3 ये भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, x स्क्वायर प्लस 1 ये भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। तो पोलिनोमियल्स में कंटिन्यूस होते हैं जनरली, जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है या डिसएग्रीमेंट है उसी पर सिर्फ हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट 2 है, क्योंकि 2 पे लेस देन 2 पे और फंक्शन है, ग्रेटर देन 2 पे और फंक्शन है, ठीक है। तो fx को चेक करते हैं 2 पे, ठीक है, बाकी सबके लिए वो कंटिन्यूस होगा। x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, सो fx इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू 2 पे हमारा ये वाला डिफाइंड है x क्यूब माइनस 3, तो x क्यूब माइनस 3 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, एंड विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ f2 इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो x क्यूब माइनस 3, तो 2 का क्यूब माइनस 3, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सो विल सिंपली पुट द वैल्यू fx इज इक्वल टू, और इसमें कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर वैल्यू लेस देन 2 वो देखते हैं। तो लेस देन 2 के लिए देखो, लेस देन 2 के लिए भी हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है x क्यूब माइनस 3, तो इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। और वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 3, सो 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, सो अगेन वी गेट 5। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब देखो राइट हैंड लिमिट में फिर से वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 2 होगी, बहुत छोटी होगी इंक्रीमेंट, 2.001 होगा लेकिन 2 से बड़ा होगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा हमारा चेंज हो जाएगा, तो वो ग्रेटर देन 2 x स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये होगा fx। अब हमारा है लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, और यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू रख देते हैं सिंपली 2 स्क्वायर प्लस 1, सो 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है। एंड नाउ वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन exist as well as equal to each other, so we'll simply write limit x tends to 2 fx exist करती है और equal to value of the function at x is equal to 2, तो ये हमारा exist करती है और इसके equal भी है, तो we can say there is no point of discontinuity. So in the last 2 question and we can say last 3 question like 9, 10, 11, there is no point of discontinuity, hence there is no point of discontinuity. So we can say there is no point of discontinuity. So we can simply say that there is no point of discontinuity, ठीक है। And like this we can solve all the questions, और यही सारा मेथड है जो हमें चेक करना है, यही सारी कंडीशंस हैं जो हमें चेक करनी है। So the questions is very easy. So the questions of the continuity of the function is going to be very easy. You just need to be patient and solve it step by step. First of all you need to check if the function exists at a given point. Second, you need to check the limit of the function, left hand limit is equal to right hand limit or not. Third आपको चेक करना है कि जो फंक्शन की लिमिट्स हैं, the limit of the function should be equal to the value of the function at the given point. तो तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं, then you can say the function is continuous at the given point. Otherwise you will simply say the function is not continuous or discontinuous at the given point. And polynomials are continuous at all the real values except at there is a point of confusion or there is point of disagreement, जैसे इसमें 2 था, less than 2 के लिए कुछ और फंक्शन है, greater than 2 के लिए और कुछ फंक्शन है, ठीक है। So there is no confusion after greater than 2, तो greater than 2 के लिए एक ही फंक्शन है, that will be continuous क्योंकि वो polynomial है। less than 2 के लिए भी एक ही फंक्शन है, वो continuous होगा क्योंकि वो polynomial है, ठीक है। बट एट पॉइंट 2 देयर इज सम कंफ्यूजन, ठीक है। सो विल डिस्कस दीज पॉइंट्स एंड देयर इज अ मेथड टू सॉल्व, देयर इज अ मेथड टू डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, आई होप यू आर एंजॉइंग एंड स्टडिंग वेरी वेल, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. Here we have question number 12. So what we need to do here is find all the point of discontinuity of f. तो सारे पॉइंट्स हमें निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के, और हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है. सो अगेन वी कैन से x की पावर 10 माइनस 1 और द सेकंड फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. एफ एक्स भी दो फंक्शन है, ठीक है. और वी कैन सी क्लियरली सी द बोथ आर पॉलिनोमियल्स, है ना.
x की पावर 10 इज ए होल नंबर, सो दैट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। तो इसमें हम क्या करना है, देयर इज ए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन और पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, दैट इज x इक्वल टू 1। तो उसी पॉइंट पर सिर्फ हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम x इक्वल टू 1 पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल का मतलब कि वो हमारा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखो फर्स्ट चीज क्या करते हैं, फर्स्ट चीज हम अगेन विल सी एट x इक्वल टू 1 कौन सा फंक्शन डिफाइंड है। एट x इक्वल टू 1 हमारा फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू x की पावर 10 x की पावर 10 माइनस 1, ये वाला फंक्शन हमारा डिफाइंड है, ठीक है। सो f1 कितना हो जाएगा, अभी f1 हमारा होगा x की पावर 10। तो 1 की पावर आप 1 रखो, 10 रखो, 100 रखो, करोड़ रखो, तो 1 की पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। एंड माइनस 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं है भाई, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एंड देन विल चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो विल चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। देखो कैसे चेक करेंगे। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू हम रख के देखेंगे कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या लिमिट क्या उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो रख देते हैं इसकी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और fx हमारा क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। देखो लेस देन 1 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, x की पावर 10 माइनस 1, यही फंक्शन हमारा डिफाइंड है फॉर लेस देन 1, ठीक है। तो इसी को रख देंगे। और अभी हमने डिस्कस किया कि 1 की पावर कुछ भी हो, सो 1 की पावर एनीथिंग इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। सिमिलरली विल पुट द वैल्यू फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, और राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब देखो इसमें fx क्या होगा, देखो फॉर वैल्यू ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 1, ये हमारा x स्क्वायर इज द फंक्शन है, ठीक है। और अब देखो x स्क्वायर भी पॉलिनोमियल है और 1 स्क्वायर इज ऑलरेडी 1, तो 1 स्क्वायर में 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और देयर इज ए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हियर, द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन वाज क्लियरली अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो इसमें देखो लेस देन 1 के लिए कुछ अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ अलग फंक्शन है। और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 1। So clearly left hand limit and right hand limits are not equal to each other. So we can say left hand limit is not equal to right hand limit, ठीक है। और we can say limit of the function at x is equal to 1 does not exist, ठीक है, does not exist। तो इसमें क्या करेंगे, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, फिर जब आगे सोल्व नहीं करना है, लेकिन हमें इसको एक स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। हेंस द फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट, नॉट कंटिन्यूअस, और यू कैन से डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे वो कंटिन्यूअस ही नहीं है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस तरह अगर पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट कहीं पर होता है, ठीक है, कहीं पर कंफ्यूजन होती है, कहीं पर अगर हमारा है जैसे x इक्वल टू 1 पे हमारी अलग अलग फंक्शन, तो विल चेक दैट एंड विल सिंपली फाइंड इट, ओके। सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। और दोस्तों ये आप, आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ इसको फॉलो करें, दोबारा देखें। एंड चैप्टर नंबर 5, सो जो हमारा अभी रिसेंटली जो सैम्पल पेपर हमने आया है सीबीएसई की तरफ से 2021 के लिए, तो सीबीएसई की तरफ से 2021 के लिए जो हमारा सैम्पल पेपर आया है उसमें चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 बहुत, अगर दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वेटेज जो है 17 मार्क्स तक है, ठीक है। तो 17 मार्क्स तक की वेटेज है, आउट ऑफ 80 17 मार्क्स इज वेरी यू कैन से हैवी चैप्टर्स, और काफ़ी मतलब वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स की। एंड both the chapters are very easy. It will not take you hardly 15 days to solve these two chapters. तो 15 दिन में दोनों चैप्टर्स हमसे हो जाएंगे। एंड both the chapters are very easy, formula based questions. And continuity में limits already you have discussed in class 11, differentiation you have already discussed in class 11, so you know something about it, ठीक है। आपको थोड़ा सा आगे पढ़ना है बट you know something about it। तो अगर इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेते हैं, सो देर इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, अगर आपको अभी जैसे स्कूल जाने की परमिशन मिली है, सो यू मस्ट बी डूइंग सम ट्यूशंस फ्रॉम हियर एंड देयर। सो प्लीज़ चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, तो ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड कंफ्यूजन एट x इक्वल टू 1, और बाकी सब जगह तो ये पॉलिनोमियल x+5 और x-5 बोथ आर पॉलिनोमियल्स, सो दे विल बी कंटिन्यूस एट ऑल फॉर ऑल द रियल वैल्यूज। तो हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 1 पे क्या कंडीशन है। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या डिफाइंड है। एट x इक्वल टू 1 तो हमारा fx क्या है, अब x इक्वल टू 1 हमारा fx देखो क्या आता है, fx इज इक्वल टू x+5 फॉर x एट x इक्वल टू 1 हमारा fx क्या है, x+5 है, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एंड विल सिंपली पुट द वैल्यू f1। तो f1 रखेंगे fx में, तो 1 + 5 दैट विल बी 6, ठीक है। तो वो हमारा वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से हम वी कैन आइडेंटिफाई इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फंक्शन इज क्लियरली डिफाइंड एट द x इक्वल टू 1 और उसकी वैल्यू आती है 6। नाउ विल सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और fx हमारा क्या है, लेस देन 1 के लिए हमारा x+5 है, ठीक है। तो लेस देन 1 के लिए x+5 है, तो x+5 को हम रख देते हैं इसमें, और 1 + 5 विल बी 6 ओनली। अब देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं क्यों, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होती है, तो दोबारा डिस्कस करते हैं कि सर लेस देन 1 में भी आपने 1 रख दिया, ग्रेटर देन 1 में भी 1 रख दिया, ठीक है। तो भाई देखो ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1.001, सो देयर इज ए चेंज, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज जब हम ग्रेटर देन 1 में जाते हैं, एंड देयर इज वेरी स्मॉल चेंज व्हेन हम लेस देन 1 में जाते हैं। तो लेस देन 1 मतलब 0.999 विच इज क्वाइट इक्वल टू वेरी सिमिलर टू वेरी मच इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 भी रख देंगे तो वैल्यू विल बी वेरी मच इक्वल, ठीक है। वैसे भी हम 0.999 को क्या रखोगे, 1 ही रखोगे, 1.001 को क्या रखोगे, 1 ही रखोगे ना। तो वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, है ना। 1 पे 1 लेस देन और 1 ग्रेटर देन, लेकिन अगर जब हम कहते हैं सर 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन सेम है, सेम नहीं है, सेम मतलब इक्वल नहीं है, सेम है मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं है ना। तो अब उसके से फर्क क्या पड़ता है कि हमारा फंक्शन जैसे ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ और फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, तो उसको हम एक ही फंक्शन नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है और इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx। अब इसमें हमारा ये ध्यान से देखिए कि 1+ के लिए यानी जस्ट ग्रेटर देन 1, जस्ट ग्रेटर देन कुछ भी ग्रेटर है लेकिन ग्रेटर तो है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे x-5 है, तो x-5 इसको रख देते हैं, ठीक है। और अब देखो x-5 है तो 1 - 5, सो इट विल बी 1 - 5 एंड दैट विल बी -4। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन क्लियरली सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1+, ठीक है। यहाँ पर fx लिखना ना भूलें, fx, ठीक है। और इसका दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस पॉइंट पर, ठीक है। एंड इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, सो वी कैन सिंपली राइट कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। सो विल सिंपली राइट हेंस fx is discontinuous at x is equal to 1, ठीक है। So in this way we can see that function is continuous or function is discontinuous at a point a, तो इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो हमारी सेकंड कंडीशन थी विच वाज लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड एग्जिस्ट एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ठीक है, और इक्वल टू ईच अदर भी होने चाहिए, तो इक्वल टू ईच अदर ही नहीं हो रहे हैं। सो 1 - 5 इज -4 एंड 1 + 5 इज 6, ठीक है। तो इसमें फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो इसमें कुछ अलग अलग सी चीज़ें हैं, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट हमें दे रखे हैं। अभी तक हमने वो क्वेश्चन सोल्व किए इसमें हमें जनरली एक पॉइंट दे रखा है, या प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इसमें दो पॉइंट दे रखे थे, लेकिन अभी देखो 3-4 पॉइंट दे रखे हैं।
ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि लेस देन जीरो के लिए हमें कुछ डिफाइंड है, लेकिन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें कुछ डिफाइंड नहीं है। लेस देन जीरो के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है, तो हमें एक ही साइड दे रखी है, तो एक ही साइड दे रखी है, तो वी विल नॉट डिस्कस एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन और पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट कम्स व्हेन देयर इज ए बोथ साइड्स आर गिवन टू अस, बोथ साइड्स में हमें गिवन है और उस पर हमें कुछ अलग चीजें लग रही हैं, तो वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है। लेकिन हमें जब एक ही साइड दे रखी है, सो वी कैन नॉट डिस्कस दैट। तो एक्स लेस देन जीरो पे वी कैन नॉट डिस्कस, एक्स लेस देन वन पे सॉरी एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमें एक ही साइड दे रखी है ना, लेस देन पे वन नहीं दे रखी है, सॉरी एक्स ग्रेटर देन जीरो है लेकिन एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं दे रखी है, लेस देन जीरो नहीं दे रखी है, ग्रेटर देन जीरो दे रखी है। अगर बात करें वन की, तो वन पे हमें एक्स लेस देन वन भी दे रखा है एंड एक्स ग्रेटर देन वन भी दे रखा है। सो हमें बोथ साइड्स आर गिवन टू अस एंड देन द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन अराइज, द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन और पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज व्हेन देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द पॉइंट इज गिवन टू अस। तो दोनों पे अलग अलग कुछ है कुछ नहीं है, तो वी कैन डिस्कस दैट। और सिमिलरली वी विल डिस्कस एट एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि लेस देन 3 के लिए भी फंक्शन गिवन है, ग्रेटर देन 3 के लिए भी गिवन है, बट देयर इज नथिंग गिवन फॉर एक्स ग्रेटर देन 10। लेस देन 10 के लिए गिवन है लेकिन ग्रेटर देन 10 के लिए कुछ नहीं गिवन है। तो ऐसे पॉइंट पर हम डिस्कस नहीं करेंगे विच वेयर वी आर गिवन ओनली वन साइड ऑफ द फंक्शन, है ना। वन साइड दे रखी है, हमें पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू टू पार्ट। द वेयर इन द फर्स्ट पार्ट विल बी फॉर एक्स लेस देन और ग्रेटर देन जो वन पॉइंट है उसके लिए, और दूसरा 3 के लिए, ठीक है। तो इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द फंक्शन है ना एफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 4 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए सिंपली 4 है और एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए 3, एंड वी कैन राइट द सेम फंक्शन लाइक दिस एज वेल। तो इसमें ग्रेटर देन लेस देन 3 के लिए हमारा 4 है फॉर एक्स लेस देन 3 और हमारा 5 है फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम वी कैन डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स और हम देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डिवाइड द फंक्शन इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अब सॉल्व करते हैं। देखो तो फर्स्ट वाले केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में सो हियर वी आर डिस्कसिंग एट एक्स इक्वल टू ए, सॉरी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू सॉल्व एट x इक्वल टू 1। तो इस पे हमारा x इक्वल टू 1 पे fx हमारा क्या है, हमारा जो x इक्वल टू 1 पे fx डिफाइंड है दैट इज 3, ठीक है। तो f1 भी कितना होगा 3 होगा। तो हमारी लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पे, f1 पे हमारा 3 है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स सी द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, हमारा 1 माइनस के लिए डिफाइंड है 3, तो जस्ट लेस देन 1 के लिए 3 है, तो सिंपली विल राइट 3। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो जस्ट ग्रेटर देन 1, तो हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, हमारा फंक्शन है डिफाइंड है 4 और 4 में को चेंज होना नहीं है, सो इट विल बी 4 ओनली, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है। उसको कैसे लिख सकते हैं, दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 माइनस और 1 प्लस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इसको अदर लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। और इससे हमारा होगा क्या, वी कैन सिंपली राइट नाउ, so we can simply say that the function is discontinued at x equal to 1, ठीक है। but before we move on, so we'll check the value of the function at x is equal to 3 पर भी बात कर लेते हैं, then we can simply write किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस और किस पे नहीं है, तो एक साथ ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही फंक्शन है। तो इस पे x इक्वल टू 3 पर हमारा fx क्या है, x इक्वल टू 3 पर हमारा fx है 5, ठीक है, x इक्वल टू 3 पर हमारा 5 डिफाइंड है एंड f 3 कितना हो जाएगा, 5 ही होगा सिंपल, ठीक है।
एंड नाउ यू कैन से द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन विच इज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए, तो 3 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए हमारा क्या फंक्शन डिफाइंड है, 3 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है f(x) = 4, है ना। तो 4 डिफाइंड है, तो 4 में कुछ भी रखोगे तो कुछ होगा नहीं, तो इट विल बी 4 ओनली। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो 3 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, 3 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइन है, f(x) = 5, तो 5 में कुछ रखोगे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। एंड इन दिस वे वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट बोथ द पॉइंट्स। तो फंक्शन हमारा दोनों ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये हम कह सकते हैं। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट बोथ द पॉइंट, ठीक है। और उसको इसमें सिंपली एक लाइन आपको लिखनी होगी, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1 एज वेल एज x = 3। तो इसमें लिख दो सिंपली, ठीक है। इसमें क्या करो, सिंपली एक लाइन लिख दो, हेंस f(x) discontinuous at x = 1 and 3। तो x = 1 और 3 पे वो डिसकंटिन्यूस है, देयर इज नो अदर पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट और कंफ्यूजन। तो हम बाकी सब पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देखो 3 4 5 विच इज अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट क्या है, कंटिन्यूस ही होता है ना। कांस्टेंट क्या स्ट्रेट लाइन होती है, कंटिन्यूस ही होता है ना, तो बाकी पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, एंड यू कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन द क्वेश्चंस इनटू 2 पार्ट्स, और यू कैन सिंपली सॉल्व इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो इनटू 2 पार्ट्स। एंड आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लाइक द वीडियो। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है एंड यू हैव जस्ट लर्न द पार्ट ऑफ इट, है ना, तो अभी प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दैट एवरीवन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द हार्ड वर्क ऑफ a tutor, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, ठीक है। तो चलो चलते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। अब देखो इसमें, सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन या कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइन करनी है, जबकि हमारा फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, सिमिलरली लेस देन 1 के लिए भी डिफाइंड है, ग्रेटर देन 1 के लिए भी डिफाइंड है। सो बोथ दिस पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, डिसएग्रीमेंट। तो बाकी जगह पे हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो भाई 2x है, 2x क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, 0 है तो कांस्टेंट है, 4x है तो भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो तो कंटिन्यूअस होगा ही, बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं बस, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको वी कैन ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं इसको, हम फर्स्ट पार्ट इसको करके लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली से द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करके इसमें लिख सकते हैं, एंड वी कैन सिंपली से दैट x = 0। सो वी आर डिस्कसिंग x = 0, और x = 0 पे हमारा फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो एट x = 0 f(x) = 2x, है ना। तो इसमें सिंपली वैल्यू रख दो, तो f0 will be equal to 0, ठीक है। नाउ विल कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू रखेंगे, तो उसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो 0 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो है 2x, यहीं पर है 2x, ठीक है। और इसमें x = 0 रखेंगे, तो x = 0 रखेंगे, तो इट विल 2 × 0 इज 0, ठीक है। नाउ विल कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन विच इज x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। और इसमें अब ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 0, 0 में तो कुछ होगा नहीं, तो इट विल बी 0 ओनली। अब देखो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द x = 0, तीनों सेम है ना। लिमिट्स भी इक्वल है, लिमिट्स आर इक्वल टू ईच अदर एज वेल एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें सिंपली क्या लिखेंगे, सो विल सिंपली राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एज वेल एज इट इज इक्वल टू f0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, x = 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस द सेकंड पॉइंट हियर, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डिस्कस द सेकंड पॉइंट हियर एट
x इजिकल टू 1। तो हमारा x इजिकल टू 1 पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है वो देखते हैं पहले। तो x इजिकल टू 1 पे हमारा देखो हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, x इजिकल टू 1 पे हमारा डिफाइंड है f(x) इजिकल टू 0। ठीक है, तो इसमें f1 रखोगे या कुछ भी रखोगे तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो इट विल बी कांस्टेंट ओनली। ठीक है, तो फंक्शन 0 है तो इसका मतलब f1 इजिकल टू 0 है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफाइंड है एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इजिकल टू 1 इज 0। ठीक है, तो लेट्स मूव एंड ट्राई टू फाइंड द अदर थिंग्स व्हिच इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं इसकी। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू के लिए, 1 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, हमारा फंक्शन डिफाइंड है 0, है ना। तो f(x) इजिकल टू 0 फॉर लेस देन 1, तो 0 में कुछ भी रखोगे तो 0 होगा। लेट्स ट्राई टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। f(x), ठीक है, अब इसमें ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, फॉर ग्रेटर देन 1 इट इज 4x। ठीक है, सो विल सिंपली पुट द वैल्यू, सो इट विल 4x, और ग्रेटर देन 1 तो 1 रख देंगे इसमें, सो 4 into 1 is 1, sorry 4 into 1 is 4, so it will be 4, and here you can see clearly left hand limit is not equal to right hand limit of the value, right hand limit of the function। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई बिल्कुल इक्वल नहीं है। f(x) is equal to limit x tends to 1 plus f(x), ठीक है, and they are not equal to each other, so we'll simply cross it, they are not equal to each other, or we can say limit x tends to 1 does not exist। ठीक है, so limit of the function does not exist। ठीक है, so in the first case we can see that x equal to 0 is a continuous function। ठीक है, तो ये continuous है और second नहीं है, so there is one point of discontinuity, hence f(x) is, we will simply write at x is equal to 1, सॉरी x is equal to 1 पे वो डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूट एट x is equal to 1। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको करना है। तो हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूट एट x is equal to 1, तो x is equal to 0 पे वो कंटिन्यूस है, डिफाइंड है। ठीक है, और x is equal to 1 पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x is equal to 1। ठीक है,